Welcome in my YouTube channel. Today we will discuss over the fifth chapter of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. So let's start. What is natural vegetation or virgin vegetation? Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. Means a type of vegetation which grown naturally without any human effort, and after growing that vegetation will undisturbed by human being. Such type of vegetation known as natural vegetation or virgin vegetation. Cultivated crops, orchards, etc. are form of vegetation but not natural vegetation. जो पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं अपने घर में, अपने खेतों में, वो वेजिटेशन तो हैं लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट वन इज एंडेमिक एंड एक्सोटिक वेजिटेशन. एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज, द वर्जिन vegetation which are purely Indian are called endemic vegetation, and exotic species means the virgin vegetation which have come from outside India are called exotic species. Means जो इंडियन वेजिटेशंस हैं वो इंडिजीनियस या एंडेमिक स्पीसीज कहलाते हैं, और जो वेजिटेशन बाहरी कंट्रीज से लाए गए हैं इंडिया में उसे एग्जॉटिक वेजिटेशन या स्पीसीज कहते हैं. लाइक कॉर्न, पोटैटो, टोबैको एंड मैनी ऑफ. ठीक है, पुर्तगीज लेके आए थे इसको इंडिया में. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उनकी वैराइटीज़ को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, आप देखते होंगे कहीं पेड़ छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं के पेड़ों के लीव्स बड़े हैं, कहीं के छोटे हैं, पतले हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ दीज चेंजेस? So first of all, we will discuss about relief features. In relief, there are two main factors. First one is land. Vegetation over mountain, rough terrains and plains are vary. When we see the vegetation over the mountain, over the rough terrains means पथरीली ज़मीन, ठीक है, एंड ओवर द प्लेन एरिया, तो सारे वेजिटेशंस के क्वालिटी और टाइप्स अलग अलग होते हैं. ये डिपेंड करता है कि उस वो एरिया कैसा है, पत्थर वाला है, सॉइल वाला है, या ऐसा एरिया है जहाँ पर सॉइल तो है लेकिन बहुत ही थिन है. ठीक है ना, जस्ट लाइक स्लोप ऑफ द माउंटेन, वहाँ सॉइल तो मिलता है लेकिन बहुत ही डीप सॉइल नहीं होता. नेक्स्ट वन इज सॉइल. As we know, each and every soil have different chemical composition. That's why every soil have their specific features. According to their specific features, they support different type of plants. Just like black soil support cotton only. Okay. Different type of soil provide basis for different type of vegetation. एलुवियल सॉइल अगर होगा तो वहाँ का वेजिटेशन दूसरा होगा, और रेड सॉइल होगा तो वहाँ के वेजिटेशंस दूसरे तरह के होंगे. डेजर्ट सॉइल होगा, माउंटेन सॉइल होगा, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस सॉइल, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन वेरीज. नेक्स्ट पॉइंट इज climate. Climate is also responsible for the growth and distribution of vegetation.
temperature. As we know, from equator to pole side, temperature gradually decrease, or from earth's surface to mountain peak, temperature gradually decrease. So according to the distribution of temperature, types and variety of vegetation varies from place to place. Okay, for example, if we have a big mountain near the equator, अगर बहुत बड़ा कोई माउंटेन है और इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटर के पास होने की वजह से माउंटेन के नीचे वाले एरिया में इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे वेजिटेशन पाए जाएंगे, लेकिन माउंटेन की पीक पर टेम्परेट वेजिटेशंस पाए जाएंगे, कॉनिफरस वेजिटेशन पाए जाएंगे, या अगर और ज़्यादा ऊंचाई होगी तो वहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन पाए जाएंगे, क्योंकि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द अवेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर, types and characters of vegetation varies. So the character and extent of vegetation are mainly depend upon it. Along with the temperature, availability of humidity in the air and precipitation also affect growth and distribution of vegetation. Next point is photoperiod or sunlight. So sunlight means temperature. Growth of plants depend upon duration of light. जिस एरिया में वेजिटेशंस को ज़्यादा देर तक लाइट मिलती है, वहाँ के प्लांट्स ज़्यादा जल्दी और बड़े बड़े होते हैं. क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना ज़्यादा बनाते हैं. ज़्यादा खाना बनाएंगे तो न्यूट्रिशन पाएंगे. ठीक है, दैट्स वाई द ट्रीज नियर द इक्वेटोरियल रीजन आर बिग इन साइज and the leaves are broad. Okay, next point is, what are the importance of forest in our human life? So there are several importance. We can't imagine our life without vegetation or forest. So यहाँ पर कुछ काउंटेबल पॉइंट्स को हम लोग लेते हैं, लेकिन वो इतने हैं कि हमारे लाइफ को हम लोग उसको गिन नहीं सकते. फर्स्ट वन इज इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. फॉरेस्ट एक ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, हम उसको बार बार यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है कि जब हम पेड़ को काट लेते हैं तब कैसे कह सकते हैं कि वो रिन्यूएबल रिसोर्स है. तो बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्स उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम बार बार यूज़ करते हैं. हम किसी प्लांट को काटते हैं तो आपके लाइफ टाइम में ही वो प्लांट फिर से ग्रो करता है और फिर उससे आप उसको यूज़ कर लेते हैं, तो उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. आई होप देयर इज नो एनी कंफ्यूजन. कंट्रोल सॉइल इरोजन, सपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज. फॉरेस्ट से हमको रॉ मटेरियल मिलता है जिस पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड होती हैं, जस्ट लाइक फर्नीचर इंडस्ट्री. क्लियर? फॉरेस्ट प्रोवाइड लिवलीहुड for different communities, and forests have so many benefits in our life. छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर हम लेके बेनिफिट्स काउंट करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, tropical thorn forest and scrubs, montane forests, and mangrove forests. So one by one we will discuss over it. Tropical evergreen forest. Why we call this forest as a tropical evergreen forest? Because this forest lies between the tropical lines. Tropical lines means Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, near the equator. This forest is also known as equatorial forest because
This forest is mainly concentrated over the 10 degree north to 10 degree south from equator. ठीक है. Evergreen means this forest appear evergreen throughout the year. वो फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे दिखाई पड़ते हैं. ठीक है. So one by one we will read about the basic features of this forest. It is found mainly in heavy rainfall areas. ये ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है. The trees reach up to 60 meters or even above. पेड़ बड़े बड़े होते हैं. क्यों बड़े बड़े होते हैं अभी पीछे बताया मैंने. क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमिडिटी एंड गुड सॉइल इज अवेलेबल. ठीक है. द लीव्स आर ब्रॉड. ब्रॉड क्यों होते हैं? क्योंकि उनको इवेपोरेशन करना होता है. ठीक है. मॉइस्चर उनके पास ज़्यादा होता है तो लीव्स से उनको इवेपोरेट भी करना होता है. It appears as a green throughout the year. Common trees of these forests are ebony, mahogany, rosewood, rubber, etc. Okay. Now next one is now see the appearance of the tropical evergreen forest. Next one is tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest means this forest is also lies between tropical region above the 10 degree to 23 degree north and south, basically in our region. ठीक है ना. And deciduous means they shed their leaves on a fixed time. ये प्लांट्स जो हैं वो एक फिक्स टाइम में अपने पत्तियों को शेड आउट कर देते हैं, इसलिए इसको डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं. देयर फीचर्स आर इट कैन बी क्लासिफाइड इन मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडुअस दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या प्रेसिपिटेशन. द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 centimeter to 70 centimeter known as moist deciduous forest. सॉरी, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर known as dry deciduous forest. Common trees of this forest are bamboos, sal, shisham, sandalwood, khair, arjun, etc. After that, there is a third forest, thorn forest and scrubs. Thorn forest means desert forest. The regions receiving less than 70 centimeter rainfall having thorn forest. थॉर्न फॉरेस्ट उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पर बारिश 70 सेंटीमीटर से कम होती है, जस्ट लाइक राजस्थान एरिया और द एरियाज ऑफ रेन शेडेड रीजन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स. आपने जब बारिश कम होगी तो पेड़ पौधे भी दूर दूर पाए जाएंगे, स्कैटर्ड रूप में पाए जाएंगे. और बारिश कम है तो उनके रूट कैसे होंगे? लॉन्ग रूट होंगे, जिसे हम टैप रूट भी कहते हैं. लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन. इस फॉरेस्ट के प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो छोटे होते हैं और थिक होते हैं ताकि वो अपने मॉइस्चर को इवेपोरेट न होने दें, से बचा सकें. कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर शर्ब्स, मीन्स झाड़ियाँ होती हैं. मेनली इस रीजन में कैक्टस प्लांट ज़्यादा पाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज नाउ सी द फीचर ऑफ द पिक्चर ऑफ द थॉर्न फॉरेस्ट. जंगल झाड़ियाँ ही सिर्फ दिखती हैं, बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखते. ओके.
Now next one is montane forest. In mountainous regions, type of trees varies according to the height. माउंटेन रीजन में जो ट्रीज होंगे वो एक ही माउंटेन पे अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरह के होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, ठीक है। एंड टेम्परेचर इज द की फैक्टर फॉर द ग्रोथ एंड वैरायटी ऑफ vegetation. Between 1000 to 2000 meter, we have temperate type of forest like oak and chestnut trees. ओक एंड चेस्टनट ट्रीज के नेम हैं। बिटवीन 1500 to 3000 मीटर coniferous type of trees are found like pine, deodar. Between 3000 to 3600 meter temperate grasslands are found. Above 3600 alpine forests are found like fir, juniper, pines, etc. And if there is more height, so above 4000 meter, we will found lichens, algae as a vegetation over there. So next and last forest is mangrove forest. Mangrove forests are generally found near the coastal areas like deltas of the Ganga, the Mahanadi, etc. In the Ganga Brahmaputra delta, Sundari trees are found. That's why that region is known as Sundarban delta. मैनग्रोव फॉरेस्ट में एक स्पेशल टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं जिनके रूट्स वाटर के ऊपर होते हैं। जनरली ये वेजिटेशन, ये फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है या फिर उन एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ वाटर क्या हो, साल्टी हो, ठीक है, खारा पानी हो। सो जनरली दीज फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द बाउंड्रीज ऑफ द ओशन। डेल्टाज में पाए जाते हैं, और डेल्टा कहाँ मिलते हैं, लैंड और वाटर के पास। ओके, नाउ सी दिस पिक्चर ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। नाउ forest and wildlife both are very important for human life as well as for maintaining ecological balance. That's why government of India stepped for its conservation measure to conserve flora and fauna. In present time 18 biosphere reserves have been set up, ठीक है, आपके बुक में 14 दिया होगा, यहाँ रिसेंट टाइम में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हो चुके हैं। अभी मैं इसका मैप भी आगे शो कर दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग और अपडेट कर लीजिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, ठीक है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट सिंस 1992। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए टेक्निकली और फाइनेंशियली गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज and zoological gardens are set up to take care of natural heritage. Project Tiger, Project Rhino, and many other projects have been introduced to conserve flora and fauna. These are the major steps taken by the government for the conservation of flora and fauna. Okay, after that, this one is the 18 biosphere reserves in India. So do it in your map also, locate it and practice it according to the name and their state also. So thank you for watching my video. I'm waiting for your comment. Thank you.